آج اسرائیل زیادہ تر فلسطین پر قابض ہو چکا ہے۔ وہ جگہ جہاں کبھی فلسطینی رہا کرتے تھے آج وہاں اسرائیلی رہتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو فلسطین غائب سا ہو چکا ہے، پر یہ سب پا لینے کے باوجود بھی لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل کی زمین کی بھوک ختم نہیں ہوئی ہے، اور اب کی بار تو اس کی آنکھ مسلمانوں کے نزدیک مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بعد سب سے مقدس اور مبارک جگہ حرم الشریف، یہ مسجد الاقصیٰ اور اس کے کمپاؤنڈ پر ہے۔ ویسے اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کو فلسطین میں بنانے کی سب سے بڑی وجہ ہی حرم الشریف تھا۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر کیوں یہودیوں کی نظر میں یروشلم، مسجد الاقصیٰ اور اس کے کمپاؤنڈ کی اتنی اہمیت ہے، اور کیوں اس اہمیت کی وجہ سے مسجد الاقصیٰ اور اس کا کمپاؤنڈ حد سے زیادہ خطرے میں ہے۔ پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا نام فیضان رضا عمارفانی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ہسٹری سے لے کر کرنٹ افیئرز تک، اکنامکس سے لے کر پولیٹکس تک سب کے بارے میں کمپلیٹ اور آتھینٹک نالج ملے گی۔ تو دیر کس بات کی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ تو دیکھیں آج سے تقریباً 3000 سال پہلے 10 سینچری BCE میں یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ انہوں نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی، جسے دی فرسٹ سولومن ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کی تھی۔ یہ دور یہودیوں کے لیے ایک سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس ہیکل سلیمانی میں جمع ہوتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، اپنے فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ لیکن پھر 586 BC میں بیبیلونین امپائر نے یروشلم پر حملہ کیا، اور اس کے کنگ نیبوخدنضر نے اس ہیکل سلیمانی دی فرسٹ سولومن ٹیمپل کو تباہ و برباد کر دیا، اسے شہید کر دیا، جس کے بعد تقریباً 70 سالوں تک، جی ہاں 70 سالوں تک یہودی یہاں وہاں بھٹکتے رہے، مارے پھرتے رہے۔ اور خود یہودیوں کی کتابوں کے مطابق یہ بات پہلے ہی لکھ دی گئی تھی کہ بنی اسرائیلی، اس وقت جو یہودی وہاں رہا کرتے تھے، یہ اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی خود کی زمین سے نکالے جائیں گے، اور یہ 70 سالوں تک کسی اور کی زمین پر بھٹکتے رہیں گے۔ پھر کیا تقریباً 70 سال ہی ہوئے تھے کہ پرشین امپائر نے یروشلم پر حملہ کیا، اور فتح پانے کے بعد پرشین امپائر کے کنگ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف یہ جو ہیکل سلیمانی جسے بیبیلونین امپائر نے توڑ دیا تھا، شہید کر دیا تھا، نہ صرف اس نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، بلکہ وہ یہودی جو بیبیلونین امپائر کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس زمین سے چلے گئے تھے، انہیں بھی دوبارہ آ کر رہنے کے لیے کہا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سائرس دی گریٹ نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ نہ صرف ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے، بلکہ وہ یہودی جو یہاں سے چلے گئے ہیں انہیں بھی دوبارہ آ کر رہنے کے لیے کہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اب یہودی اس سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد، جس طرح یہ فرسٹ ٹیمپل میں جو پہلا ہیکل سلیمانی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس میں یہ جیسے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے فیسٹیولز کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق جانوروں کی قربانی دیتے تھے نا، اسی طرح انہوں نے اس سیکنڈ ٹیمپل میں بھی یہ سب کرنا شروع کر دیا۔ پر وقت ایک سا نہیں رہتا، دنیا کے نقشے پر ایک نیا مذہب، ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، کرسچینٹی اور دی رومن امپائر۔ ان کا دبدبا یروشلم میں بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے جو یہودی تھے، انہوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کی، جسے دی فرسٹ جوئش رومن وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ تقریباً 5 مہینوں تک چلی، اور اس کے اختتام پر یہودیوں کو بہت بری ہار ہوئی۔ رومن امپائر نے نہ صرف یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، بلکہ اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، انکلوڈنگ دی سیکنڈ ٹیمپل، جو ٹیمپل سائرس دی گریٹ نے بنایا تھا نا، اس کو بھی ٹوٹلی طور پر ختم کر دیا، ایکسیپٹ صرف ایک دیوار کے، دی ویسٹرن وال، جو آج بھی یروشلم میں مسجد الاقصیٰ کے کمپاؤنڈ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ دیوار یہودیوں کے لیے جس طرح مسلمانوں کے لیے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور مسجد الاقصیٰ اس کی جتنی اہمیت ہے نا، یہودیوں کے لیے اس دیوار کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اب شاید آپ سوچیں گے کہ یار اس سے مسجد الاقصیٰ اور اس کا کمپاؤنڈ، یہ جگہ کیوں خطرے میں ہے؟ یہ دیوار تو ہزاروں سالوں سے یہاں کھڑی ہے، جیسا ہم نے جانا، ہر سال ہر روز یہودی یہاں پر آتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسرائیل کو فلسطین میں بنانے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ یہودیوں کے لیے کوئی جگہ ہو جہاں پر وہ مل کر رہیں، اس جگہ کو یہ اپنا ملک کہیں۔ ایسا ہوتا تو انہیں زمین کا کوئی بھی خالی ٹکڑا دے دیا جاتا کہ بھائی دنیا بھر میں ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے،
इन्हें ज़मीन का कोई खाली टुकड़ा दे दो जहाँ पर वो मिल कर रहें, उस जगह को ये अपना मुल्क कहें। ऐसा नहीं किया गया। अब ऐसा करने के पीछे देखें, यहूदियों की जो रिलीजियस बुक्स हैं उसमें कुछ पेशन गोइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे कि इनकी रिलीजियस बुक, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि मैं अपने निकाले हुए लोगों को इज़राइल ले आऊँगा, ये टूटे हुए शहरों को बनाएंगे और उसमें रहेंगे। इसके अलावा एक और पेशन गोई थी कि मैं कौमों से निकाल कर, मुल्कों से निकाल कर तुम्हें जमा करूँगा और तुम्हें तुम्हारी खुद की ज़मीन, ये वर्ड देखिएगा, तुम्हारी खुद की ज़मीन पर ले आऊँगा। अब ये ज़मीन खुद की क्यों है, इसको भी समझने के लिए इनकी जो रिलीजियस बुक है तौरा, उसमें ये लिखा हुआ है कि खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये वादा दिया कि मैं तुम्हारी नस्ल को ये ज़मीन देता हूँ, दरिया नील से लेकर नहरे अल फुरात तक, जो कि आज का प्रेजेंट डे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इराक, बचा कुचा जो फ़लस्तीन है वो, और इज़राइल। अब ये वही पेशन गोइयाँ हैं जिसकी वजह से आप अक्सर सुनते होंगे कि इज़राइल एक प्रॉमिस लैंड है। ये तो वो ज़मीन है जो खुदा ने भाई हमारे नाम पर लिख दी है, हमें वादे में दे दी है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जो यहूदी दुनिया भर से, कौमों से निकलकर, मुल्कों से निकलकर ये जो फ़लस्तीन में आए थे ना, ब्रिटिश ने इन्हें फैसिलिटेट किया था फ़लस्तीन में आकर रहने के लिए। यहाँ पर भी ये कि भाई ये ब्रिटिश की कोई करना वरना नहीं है, ये तो हमारी रिलीजियस बुक में पहले ही लिख दिया था कि खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें कौमों से निकाल कर, मुल्कों से निकाल कर तुम्हारी अपनी खुद की ज़मीन पर जमा करूँगा। तो ये तो हमारी पेशन गोई है जो कि सच साबित हुई है। इसका मतलब ये भी है कि आने वाले वक्त में ये जो इतने सारे इलाकों की हमने बात की है ना, दरिया नील से नहरे अल फुरात के दरमियान, कल को इज़राइल इस पर भी काबिज हो जाएगा, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट डे इज़राइल है ये तो एक छोटा सा हिस्सा है उस ज़मीन का जो खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वादे में दी थी। बहरहाल अब जैसे ये इज़राइल के बनने और यहूदियों के फ़लस्तीन की ज़मीन पर आने की कुछ पेशन गोइयाँ हैं ना, इसी तरह हैकल सुलेमानी से रिलेटेड भी कुछ पेशन गोइयाँ हैं जिसे शायद पूरा करने के लिए, जैसे इज़राइल को बनाने के लिए फ़लस्तीन को ख़त्म किया गया है और ख़त्म किया जा रहा है, इसी तरह हैकल सुलेमानी से रिलेटेड पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए खुदा न खास्ता ये जो हरम अल शरीफ है, इसमें मस्जिद अल अक्सा, डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद किबली ये खड़ी हैं, यहाँ पर कायम है, इन्हें शायद शहीद किया जाएगा या शहीद किया जा सकता है। अब वो क्यों, इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले ये जो हैकल सुलेमानी से रिलेटेड कुछ पेशन गोइयाँ हैं यहूदियों की रिलीजियस बुक्स में, उसे जान लेते हैं। पहली ये कि प्रॉफिट ज़करिया, जिन्हें इस्लाम में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्होंने अपने बंदों यानी यहूदियों से कहा, जिसका मतलब कुछ यूँ है कि आने वाले वक्त में एक शख्स ज़ाहिर होगा या पैदा होगा जिसका नाम अल-फरा होगा। ये हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर करेगा। इस शख्स की खासियत ये होगी कि ये बादशाह भी होगा और मौलवी या पादरी भी, और ये भी कि ये शख्स इस हैकल सुलेमानी के अंदर तख्ता लगाकर दुनिया पे हुकूमत करेगा। अब यहूदियों का ये मानना है कि ये शख्स अल-फरा ये इनका मसीहा होगा और दी थर्ड टेम्पल हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर किया जाएगा। यहूदी इस शख्स के काफ़ी इंतज़ार में हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जब ये शख्स आएगा तो ये अपने साथ अमन लाएगा और इसकी लीडरशिप में यहूदी कौम बहुत तेज़ी से तरक्की और खुशी पाएगी। इसके अलावा इनकी कुछ रिलीजियस बुक्स में तो एग्जैक्टली यहाँ तक बता दिया है कि मुस्तकबिल में जो टेम्पल बनाया जाएगा उसकी कैसी चौड़ाई होगी, कितने और कैसे रूम्स होंगे, कैसी दीवारें होंगी, इस टेम्पल के अंदर कैसे बर्तन पड़े होंगे, और तो और कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। अब इन डिटेल्स को देखते हुए कुछ यहूदी ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि दी टेम्पल इंस्टीट्यूट, इन्होंने तो इस थर्ड टेम्पल का नक्शा तैयार कर लिया है, बर्तन तैयार कर लिए हैं, और इतने ज़्यादा पादरियों या जो प्रीस्ट हैं इनके, उनको भी ट्रेनिंग दे दी है जो ये थर्ड टेम्पल बनने वाला इसके मामलात को देखेंगे। तो भाई तैयारियां तो पूरे जोश व जज्बों से चल रही हैं। इंतज़ार है सिर्फ उस ज़मीन का जहां पर ये दी थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। अब यहूदियों का ये मानना है कि पहले दो टेम्पल्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये वहीं खड़े थे जहां आज मस्जिद अल अक्सा या डोम ऑफ द रॉक खड़े हैं। यानी अगर दी थर्ड टेम्पल बनाया गया या उसको बनाने की कोशिश की गई तो ये जो मकामात हैं ना, इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा, इन्हें ये शहीद करने की कोशिश करेंगे। यहूदियों की ये पूरी कोशिश है कि कुछ भी करके ये जो मकामात हैं इन्हें अपने कंट्रोल में लिया जाए, और देखा जाए तो ऐसा ही कुछ किया जा रहा है या ऐसी ही कोशिशें की जा रही हैं। पहले जब 1948 में इज़राइल को बनाया गया था तो जेरूसलम के दो हिस्से किए गए थे।
ایسٹ जेरूसलम जहां हरम अल शरीफ वाक़ है, इसे मुसलमानों को दिया गया था और वेस्ट जेरूसलम यहूदियों को दिया गया। लेकिन फिर 1967 की अरब इजराइल वॉर के बाद यहूदियों ने या इजराइलियों ने इस पूरे जो जेरूसलम है इसे अपने कंट्रोल में ले लिया, इंक्लूडिंग हरम अल शरीफ, जिसे बाद में एक एग्रीमेंट के बाद दोबारा मुसलमानों को दिया गया। पर पूरा जेरूसलम तो मुसलमानों के हाथ से निकल गया। अब पिछले कुछ 10-20 सालों पर खास करके नज़र डालें तो मालूम होता है कि हरम अल शरीफ को भी मुसलमानों के हाथ से छीनने की कोशिश की जा रही है। कभी इजरायली फोर्सेस नमाज के टाइम मस्जिद अल अक्सा और इसके कंपाउंड पर हमला कर देते हैं। कभी ये देखा जाता है कि इजरायली फोर्सेस कुछ यहूदी ग्रुप्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड में इबादत करें, जो कि सख्ती से मना है। अब ऐसा करने से शायद आप सोचें कि सिर्फ मुसलमानों के हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा, कुछ शहीद वहीद तो नहीं होगा ना। तो देखें, पिछले कई सालों से ये जो हरम अल शरीफ है ना, ये ऊंचाई पर बना हुआ है। इसके नीचे कंटिन्यूसली ड्रिलिंग चल रही है, टनल्स पे टनल्स बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन खोखली हो चुकी है। यानी ये कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा ज़लज़ला आता है या फिर ये जो इजराइल और गाज़ा के दरमियान जंग चल रही है, अगर इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन इस इलाका, ये जो जेरूसलम है, इस पर पड़ जाए, यहाँ पर कोई बॉम्ब धमाका हो जाए जिसकी वजह से ये ज़मीन तेज़ी से हिले, तो इसके बहुत चांसेस हैं कि खुदा ना खास्ता ये जो मुक़द्दस मकामात हैं ये शहीद हो जाएंगे या हो सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया तो यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए ज़्यादातर रास्ते खुल जाएंगे अपने थर्ड टेम्पल के ख्वाब को हकीकत में बदलने के। आफ्टर ऑल, जो कट्टर यहूदी हैं, जिन्हें ऑर्थोडॉक्स जूइश या कंजर्वेटिव जूइश कहा जाता है, ये दिन में 3 बार टेम्पल की दोबारा बनने की दुआ करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि दी थर्ड टेम्पल का बनना इनके सुनहरे दौर की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इस टेम्पल को बनाने के लिए इनका साथ कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप भी दे रहे हैं। जी हाँ, कुछ क्रिश्चियंस ग्रुप भी दे रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस के मुताबिक, इनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं उसके मुताबिक, इनका मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तब आएंगे जब टेम्पल बनेगा और उसके तख्त पर कोई शैतानी किस्म का आदमी, जिसे ये एंटाई क्रिस्ट कहते हैं, वो बैठ जाएगा और वहाँ से जादू के ज़रिए लोगों को गुमराह करेगा और अजीब व गरीब चीज़ें करेगा। दुनिया अपने आखिरी वक्त में होगी, हर जगह उल्टे सीधे काम होंगे, बुराई आम होगी, जिसे सही करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इस एंटाई क्रिस्ट को कत्ल करेंगे और दुनिया का निज़ाम दोबारा सही कर लेंगे। वैसे मुसलमानों का भी ये जो एंटाई क्रिस्ट है, इससे रिलेटेड कुछ मिलता जुलता बिलीव ही है। मुसलमानों के नज़दीक ये शख्स दज्जाल होगा। बहरहाल, अब ये जो कट्टर यहूदी हैं, इनके मंसूबे कामयाब होते हैं या मुसलमान अपने मुक़द्दस मकाम मस्जिद अल अक्सा और इसका जो पूरा कंपाउंड है, इसको डिफेंड करने में, इसकी सेफ्टी करने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहीं पर ही अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इन द एंड आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।